Hello, friends. A very warm welcome to another episode of taking up very important general studies approach, or you can say optional approach, or you can say economics concepts and perspectives. We are actually trying to do the exercise in a good faith, where we are trying to see what best one can write in a sustainable manner as far as economics optional paper 2 is concerned. But then again, so many ideas layered and foundations are there, which are very much helpful for even, I would say, any person who is interested even in understanding how finance works in India, what is the status of economy in India. And as a very aware citizen, which even our Prime Minister always says that we must learn, we must try to contribute. From that perspective, also, I find these exercises are very, very reasonable exercise, which are going to help you even in the interview also, whenever we are cracking mains. So with this idea, let's start and try to see what more we can add and in what direction we can score good marks. You are always welcome to give your critical feedback, because no work becomes absolute. Even no topper becomes, super topper, because every next year there is someone a better version of that. So we must respect the institution, we must respect our hard work, we must respect everything which comes in between, because I think that is one of the good ways you can sustain even preparation without getting very frustrated or cynical. Spectators mean not spectator. I'm reading it wrong. Speculators may do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise, but the position is serious when the enterprise becomes the bubble on the whirlpool of speculation. So this is a very, very important quote, a very important phrase which has been put up here. Always remember, if the question is given in a very, very flowery vocabulary, so answer must also try to give certain phrase so that it matches with the demand of the question. Let's see. When a capital development of a country becomes a byproduct of the activities of a casino, the job is likely to be undone. So it's a very, very good and very, very powerful statement, and it is actually speaking in context of the global financial crisis. That is what I should say. Moving on, global financial crisis. Moving on, financial. Any aspect, whether it is a global financial system, whether it is Indian financial system, everything works on certain parameters, certain theories, certain market principles, certain principles of economics and even finance. So when you start playing with those principles irrationally, then bubble comes up, whether it is housing bubble, whether it is financial capital market bubble, whether it is the bubble of, say, real estate, whether it is a bubble of, for example, in China we have been speaking about slowdown in real estate. So that was a bubble in making, and everybody feared that if there is a collapse, then whole world will be shaken. So this is very important question, this is a very, very broad question. So let's try to see from the perspective of speculation, and also from the perspective of what are the global universal economic governance principles which help that. So in India they have been followed, and that is why we were being helped. Global financial crisis of 2008-2009 the global financial crisis of 2008-9 was a resilient economy test for India, which proved fruitful with impacts only on the surface in the short term, as stated by Goldman Sachs. Fine, you stated something, you covered it well, and you closed the topic so that you can move to the next one without repetition. The the speculatory forces couldn't penetrate India due to the twin balance sheet advantage and minimum financial exposure. External debt to GDP ratio only 15%. Very true. This is very, very true and a standard explanation. If speculation overtakes the market forces, then speculatory demand obsession drives the economy, fudging the data. For example, Lehman Brothers failed as a result. Regulatory provisions are bypassed. So this here also you can give certain example, like in case of US, or even in case of, you can talk about the 1990s East Asian crisis also, before 2008 2009. Asian tigers, Singapore and South Korea, Japan, all that also faced a great financial crisis. But I think this is very, very basic and a standard approach. Outcome of busting with spillover effects, as can be seen during GFC. Impacts on Indian economy. India was in the best phase of growth, economic boom with GDP at 9%. Capital market crash and capital outflows depreciated Indian rupee vis-a-vis dollar heavily.
Economic slowdown with growth sliding down to 6% in 2008-2009 from 9%. Exports slumped majorly in textiles, engineering, goods and services sector, as the US was the major importer of these. So what we have done here, on one aspect, we went on to say what were the impacts, but that too also in the long term there was not much impact. And then we went to speak about the fundamentals of Indian economy, and then we are speaking about impact in a very informatory way. Reformatory steps: unleashed second generation reforms, Basel norms 2, increase CRAR to 12%, independence of credit rating agencies ensured exponentially fiscal policy to support growth. Therefore, a new phase of growth began post GFC, that is global financial crisis. I don't find any much deviations in the answer. In fact, more data is also coming up. The second part of the question is very well addressed. Even in the first part, it is beautifully put up. But then again, when we are speaking about the global financial crisis, if we can bring 2 3 very important quotes, or at that time if someone said something which reflected, everything can be summarized in that. So that is not a very secondary aspect. For example, how World Bank defined, how how, for that matter, even the US Federal Reserve. So if we just, because it is about global financial crisis, and then in our answer also, if we can say same thing is very important, whatever you have written, but bring the role of RBI, how RBI handled it, and I think that will be more than sufficient, because everything else is reflected. Account for change in the employment pattern in India after liberalization. I think wonderful question, and a wonderful concept which is going to check a clear-cut understanding of the candidate, because everybody can write on this, but you are not going to get a score if you are not very precise and to the point. What are your suggestions for employment security in informal sector of India? So I think very amazing question. If it is a 10 marker, it's very difficult to get more than 4. If you have written wonderfully, I think one can get even 6 to 6.5. Let's see. The employment pattern post LPG reform became more fluid and flexible as the nature of employment changed with the more dependence. So, okay, fine, more dependence on private sector, gross fixed capital formation. See, Bimal Jalan committee is rightly saying so, you have put in very correctly. But then, if in the beginning, if we are trying to convey that employment pattern in India after liberalization, became more energetic, it became more enthusiastic, it is more skillful, then we are actually, then you can also say that, uh, with more role of the private sector, because that was very true, because everything was getting unlocked. Everybody is ready to take risk. And that is why employment pattern is changing. A sudden shift is witnessed when the skills are, whatever was brain drain, whatever was getting out of India, suddenly it was trying to do an experiment in India. Big IT firms and big service sector was emerging like in a great way. So you are very right, but then I'm just telling you that how you could have little bit portrayed it. Changes in employment pattern: service sector boom created jobs in ITS and BPO industries like call centers and software services, 60% contribution to GDP. So even service sector boom also, here you should write like service sector boom, not just limiting to metropolitan cities like the Silicon Valley of India, Bangalore or even Pune, but then Hyderabad will also emerge, or even Chandigarh will come into picture, or even certain other cities, Delhi NCR will also, Noida will also emerge. So थोड़ा सा प्रैक्टिकल बोलने से क्या होगा, उससे हम माइग्रेशन का पैटर्न, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में माइग्रेशन का पैटर्न भी फिर हम बता सकते हैं, that how skill based migration is taking place, because it's also impacting employment pattern. And but agricultural employment formal remains stagnant with increase in disguised employment, that is family labor, as skill based employment emerged. स्किल बेस्ड इमर्ज ना, तो स्किल नहीं है, तो स्किल नहीं है तो आप एग्रीकल्चर पे चले जाओगे, तो यहाँ पे वो पॉइंट आ सकता है. इट बिकेम ए मेजर कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, वेरी ट्रू, थर्ड वाले पॉइंट में, as higher education need to be more adjusted towards skill. Manufacturing being labor intensive sector moved with the slow pace because of obsolete technology, very true. Leapfrog to services sector, low productivity, skills mismatch, very true. So global competitiveness, and then on the top of it वही अगेन वही बात है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में सब आ जाएगा. जब आप वही चीज प्रोड्यूस करने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपके पास मशीन ही नहीं है, वो आपके पास बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है, आपके पास बड़े बड़े ट्रेलर नहीं है, आपके पास बड़े 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 आपके पास जेसीबी नहीं है, बड़े बड़े आई एम यूजिंग जस्ट जेनरिक वर्ड, मशीन ही बड़ी बड़ी नहीं है, बोरिंग टनलिंग मशीन ही नहीं है.
आपके पास हवाई जहाज, मतलब हमें 10,000, सपोज करो हमें ऑर्डर, हमें 1000 या हम लोग गेटिंग द एग्जैक्ट फिगर, बट देन अगर हमें 10,000 एरोप्लेन चाहिए आज की डेट में, मान लीजिए, बनाते हम एक भी नहीं। हम्म। पैसेंजर प्लेन की बात हो रही है। जी। तो ये वाला एलिमेंट आप यहीं से पकड़ के ले आओ, तो बिल्कुल सही है। डिफेंस सेक्टर तो खैर ओपन ही नहीं हुआ था, क्या कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मल सेक्टर स्टिल कॉन्स्टिट्यूटेड 80% ऑफ लेबर फोर्स। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी इज ओपन बट द इकोनॉमी इज नॉट फॉर्मल। वो जो ओपन तो हो गई, ओपन हो गई, लेकिन फॉर्मल तो नहीं हुई। ये वाली बात है। तो इसमें एमएसएमई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर लेबर इंक्रीज विद टाइम। गिग इकोनॉमी ग्रू विद सेल्फ एम्प्लॉयड। तो गिग इकोनॉमी की बात आती है, पोस्ट 2007 8 9 10 ऑनवर्ड्स के बाद ही हम गिग इकोनॉमी की चर्चा कर सकते हैं। बिकॉज डिजिटाइजेशन और ई कॉमर्स की राइज के साथ गिग इकोनॉमी आएगी। फ्लेक्सिबल एंड वो तो ठीक है, तो अच्छा है। पॉइंट्स आर वेरी मच विजिबल। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी इन इन्फॉर्मल सेक्टर, सोशल सिक्योरिटी, श्रम योगी मानधन योजना, स्किल अपग्रेडेशन, पीएम स्वनिधि, डेटा क्रिएशन, ई श्रम पोर्टल। Therefore, no major sectoral shift is visible. Yet the demographic dividend analysis exists by 2050. So अगर मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पे जाऊं, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि अकाउंट फॉर चेंजेस इन द एम्प्लॉयमेंट पैटर्न ऑफ इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन। तो चेंजेस वही बात है, चेंजेस एम्प्लॉयमेंट क्यों हुआ? देश खुला, देश खुला, कंपनीज खुली, कंपनीज को ऑर्डर मिल सकता है, कंपनीज केटर कर सकती हैं, तो उसका स्किल चाहिए, उसके लिए हमें लॉजिस्टिक्स चाहिए। एक बात तो आपने सर्विस सेक्टर का बता दिया। व्हाट आर योर सजेशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी? आपने सजेशंस भी बता दी। सेकंड पार्ट इज आई थिंक वंडरफुली डन। फर्स्ट पार्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो इतना बड़ा है, उतना उसके अंदर थोड़े से नुएंसेस ज्यादा हैं। सो इट इज कमिंग अप क्लियरली। सो जैसे माइंड ट्री था, माइंड ट्री का एग्जांपल दे सकते हैं हम। आईटी फर्म की बात है तो बड़े, मतलब आप सबसे फेमस एग्जांपल मत दीजिए, उसके सेकंड वाला एग्जांपल दीजिए हमेशा। क्योंकि फर्स्ट सबके माइंड में फर्स्ट ही आएगा, विप्रो आएगा, टीसीएस आएगा, हाँ यू नो विप्रो, टीसीएस और वो इन्फोसिस आएगा, वो मत दो, आप सेकंड दो। और जी। साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि क्या एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में आया कि भाई जो एमएनसीज हैं, जो मतलब वर्ल्ड के बड़े बड़े, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, दे जी। ऑल्सो ओपन अप देयर सेंटर्स ओवर हेयर। दे हम्म। ऑल्सो ओपन अप देयर, आई शुडंट से हेडक्वार्टर्स, बट एक रीजनल FD है। हेडक्वार्टर्स की तरह शुरू। हम्म। ये एक पैटर्न आया, चेंज आया ना, पैटर्न आया। और चाइना की बात तो करनी पड़ेगी, मतलब चाइना इस टाइम तक हमसे आगे निकल गया था, लीप फ्रॉग कर गया था। हम्म। साथ साथ में चाइना को हम देख रहे हैं, चाइना से माल आ रहा है बहुत, चाइना का बहुत इंपैक्ट आया। हमारा आधा धंधा उससे हुआ, इसलिए डंप हो गया 2010-12 तक तो। दिवाली पे दिए से लेकर और गणेश जी से लेकर और लाइट सब चाइनीज। तो 14 के बाद ये तो 14 16 17 तक इसका बहुत ज्यादा प्रेशर रहा। तो आई थिंक ये भी ऑन ट्रैक है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, आज सेकंड पार्ट इज आई थिंक वो हो गया, फर्स्ट पार्ट भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा और आएगा। लैंड सिस्टम ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेन पॉवर्टी इन इंडिया, स्टैग्नेंट ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी डिस्कस। तो अब इसको आप नए तरीके से कैसे लिखेंगे, मैं हम ये कोशिश करेंगे जानने की। The new land revenue system introduced by British in India created a vicious poverty cycle and economic drain of India as stated by V.K. Arviga. Wonderful, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। Twin loss of sustained, twin loss of sustained poverty and growth stagnancy. Twin loss क्यों बोला हमने इसको? सर लॉस ही हुआ ना, अगर पॉवर्टी हो रही है और तो ग्रोथ लॉस, बस ट्विन लॉस के बाद कॉमा आना चाहिए, लॉस ऑफ, अगर लॉस ऑफ सस्टेन पॉवर्टी होगी फिर तो ग्रोथ होगी। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ आ लॉस, सकता था। एरो, एरो लगा दो, एरो। डोंट गो फॉर ग्रामर करेक्टनेस। हम्म। ग्रामर का एग्जाम से कोई लेना देना हाँ नहीं। है ही नहीं। तो आप बस लॉस किया, फट से ऐसे कर दिया। हम्म। एक्सॉर्बिटेंट हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ हार्वेस्ट क्रिएटेड फार्मर्स इंडेटेडनेस, सेंसस डाटा भी है। और जैसे आपका सनसेट क्लॉज था कि अगर आपने पैसा नहीं दिया तो आपकी लैंड ही ले ली जाएगी, तो आप उसके साथ आप सनसेट क्लॉज भी बता दीजिए। जी। फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन मार्जिनल पीस ऑफ लैंड लाइक इन बंगाल, जूट, बिहार, इंडिगो लेड टू आवर डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट मनी लैंडर्स लाइक जगत सेठ। अब जगत सेठ तो देखो, ब्रिटिश ने आने के बाद 1800 तक जगत सेठ का तो कब खत्म कर दिया। जगत सेठ तो 1760s तक रहेंगे, जब तक ब्रिटिश के हाथ में पूरा सिस्टम नहीं आ गया। उसके बाद तो आप कह लो कि प्राइवेट मनी लेंडर्स जो हैं, हाँ मतलब आपने ठीक कहा, उस एंगल को मैं समझ रहा हूँ। तो लेकिन हम इन्हीं को क्यों बुरा बनाएं? ये तो है, ये डबल जियोपार्डी है। लेकिन पहले असली एक्सप्लॉइटेटर तो ब्रिटिश ही है। ब्रिटिश हम, ब्रिटिश उनको लूट रहे हैं, वो हमको, वो आगे लूट रहे हैं। तो ठीक है, इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो आप कह सकते हो कि सर्वे डन इन बंगाल इन द टाइम्स ऑफ विलियम बेंटिक।
जी। ऐसा करके लिख, बस हो हम्म। गया। वही बात बात वही लिखनी है, बस आगे आपने नोट कर दिया। सर्वे डन इन बंगाल बाय विलियम बेंटिक, और इन द टाइम्स ऑफ डलहौजी, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो आप। हम्म। तो उससे क्या होगा, थोड़ी ऑथेंटिसिटी और बढ़ जाएगी। एब्सेंस ऑफ रिलीफ इन टाइम्स ऑफ फेमिन, ड्राउट और वीक मानसून लाइक 1770, 1784 एंड 1943। तो ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हाफ हार्टेड मेजर्स लाइक फेमिन कमीशन आए, हाफ हार्टेड थे। मैकडोनल्ड कमीशन, एक जो करजन के टाइम पे था, आए कमीशन तो बनाया लेकिन उसने कुछ किया नहीं ढंग से। prerequisites of not prepared and planned like high yields, high yielding varieties of seeds, absence of mechanism like iron plowshare or tractors. Very true. With time, agriculture becomes overburdened, which worsened the situation. Fragmentation of land तो हो ही रहा था. India became a net food importer. PL 480 ये तो बात की बात है. Real wages remain stagnant. Double-digit inflation in eroded purchasing power. RBI survey. Therefore, land system left a long-lasting impact on Indian agriculture. If I go again back to the question, so I think this is a beautifully written answer, which is bringing lot of points and ideas. But हमें एक जो aspect है 20% मैं कहूँगा इस आंसर का, अगर आप ये लिखते, अगर आप ऐसे लिखते, मान लीजिए कि आप डेटा देते कि द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय ब्रिटिश, इट वाज 4 times व्हाट द मुगल कलेक्टेड एनुअली, एक आपने जैसे पॉइंट बोल दिया। या फिर अगर आप बोलिए कि लैंड इन 18 लैंड इंडियन इंडियन एग्रीकल्चर लैंड 1770s, 1770s में सिनेरियो है दैट मोर नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन लैंड and fragmentation is visible, including with that commercialization is visible। देन आप लिखो 1850s में क्या हो गया, 1850s में वही लोग indebtedness में भी चले गए हैं, मोर देन डबल पीपल आर नाउ डिपेंडेंट, मोर नंबर ऑफ शेयर क्रॉपर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो आपने पैटर्न दिखा दिया। 1940s में फिर क्या हो गया, आपने ऐसे 1750s, 1850s, 1940s या 1930s, और भले ही आप उसमें डेटा मत लिखिए कि इतने मिलियन और ये वो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप ऐसे ग्राफ सा बना दीजिए जी। कि एक तरफ रूरल पॉवर्टी, एक तरफ इंडेटेडनेस, ऐसे करके बना दिया, वही दोनों चीज बढ़ गई। हम्म। पॉवर्टी भी बढ़ गई और रूरल इंडेटेडनेस भी बढ़ गया, दोनों मिल रहे हैं ऊपर, और वो जाके क्या हो गया, वो फेमिन है बेसिकली कायदे से। हम्म। तो जब हमारे पास एक्चुअल डेटा हमें याद नहीं, और फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हो गया साथ में। अब मर्द तो क्या करेगा, मर्द तो फैक्ट्री चला जाएगा कहीं ना कहीं दूर, बॉम्बे या कहीं कहीं तो जाएगा ना रोटी कमाने। तो हम्म। घर की जो औरत है, घर की जो महिलाएं हैं, उन्हें मजबूरी में बच्चों के साथ एग्रीकल्चर में काम करना पड़ेगा। जी। टेक्नोलॉजी का तो कोई मतलब नहीं, इसीलिए भूखे, बेचारे भूखे, दरिद्र, और यही भारत की करुणा का मतलब, करुणामय सिचुएशन, हम्म। करुणामय सिचुएशन बेसिकली। पानी नहीं है, कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं है, जी। सब बारिश के भरोसे है। तो लगान जैसी मूवी तो बनी, लेकिन असली तो चीज ये थी। हम्म। Why socialist model of development could not bring about equitable distribution of income in India and the country remained on a slow growth trajectory of 3 to 3 long time? Discuss। आज की डेट में ऐसे क्वेश्चन आना बिल्कुल पॉसिबल है। So the model of development model of socialism, आपने बोला India adopted the model of socialist capitalism post independence within the framework of mixed economy as stated by Tirthankar Roy। बिल्कुल सही बात है। Gradually India slipped into the Hindu rate growth of 3% of GDP by 1980 due to multiple reasons। ठीक है, चलिए आगे चलिए, ये भी सही बात है। India had newly independent infant democracy had limited finances with the multiple targets to achieve poverty alleviation, food security, stable in economic growth and inflation, social welfare simultaneously। Apart from infrastructure भी तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ और एग्रीकल्चर ग्रोथ, वो तीन चीजें भी चाहिए चाहिए। ये तो फिर भी ये तो चाहिए जो आपने ऊपर लिखा है, तो ये तो डेवलप कंट्री या किसी के लिए भी चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी तीन चीजें चाहिए थी। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए और इंडस्ट्रीज चाहिए। ये तीनों भी नहीं थे जब हम आजाद हुए। तो जी। बात तो बिल्कुल सही है, क्या करेंगे फिर उसमें। अब हम्म। आपने कहा लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा एंड इट्स फेयरनेस कुडंट बी 100% रिलायबल, टॉप विद 80% 90% इन्फॉर्मल इकोनॉमी आरबीआई। अच्छा, आप कह रहे हैं उस टाइम पे डेटा नहीं होता था, उस डेटा वजह से वो नहीं कर पाए। Laissez-faire policy was more prominently adopted post 1991 until the dominance of public sector, industrialization, nationalization of banks, defense expenditure। ठीक बात है, चलो। Policy limitations, incomplete land reforms, 80% of marginal farmers। Okay, therefore, closed economy and import substitution policy could not fully utilize the potential of India's economic growth, which was important at the same time for politico-economic stability। अब अगर हम क्वेश्चन पे जाएं, तो क्वेश्चन साफ साफ हमें ये पूछ रहा है, आपने कोशिश अच्छी की, इसमें चीजें निकल के आ रही है, लेकिन वो बोल रहा है कि सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कुड नॉट ब्रिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे फोकस होना बहुत जरूरी है। तो मतलब कहने का ये था कि हमने मॉडल लिया, आपने बता दिया कि हमें ये पॉवर्टी ये सारी चीज करनी थी, इसीलिए हमने जो है हमने पीएसयू का मॉडल लिया, हमने एग्रीकल्चर का मॉडल लिया, ये तो ले लिया हमने। लेकिन क्योंकि हमारा सोशलिस्ट मॉडल है, सो दैट इज वाई वी आर नॉट इनकरेजिंग प्राइवेट एंटरप्राइज, वी आर नॉट इनकरेजिंग प्राइवेट बिजनेस कि क्रेडिट लो और कोशिश करो, पैसा लो और कोशिश करो, ये नहीं हो रहा है। तो दैट वी आर बिकमिंग लिटिल इनवर्ड लुकिंग, we are satisfied with the existing status quo, we are not liberal, we are not open to lot of risks। ये एक जो सोशलिस्ट मॉडल का बैकवर्ड पॉइंट है। और जो है और इक्विटेबल क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज बिकॉज इंडिया वाज नॉट रशिया ना, या इंडिया ने मॉडल तो ले लिया, लेकिन क्या रशियन डेमोक्रेसी इंडिया की तरह थी? इंडिया तो डेमोक्रेसी है ना। तो हम्म आप लिख सकते हो कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक मॉडल है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो इक्विटेबल तो अभी भी नहीं पहुंचा है। नॉर्थ ईस्ट के पास क्यों नहीं है? नॉर्थ ईस्ट ही क्यों पीछे रहेगा? उसकी न्यूज की बात क्यों नहीं होगी? अभी आज की डेट में मोदी जी के 60 विजिट्स हो चुके हैं नॉर्थ ईस्ट में, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए। वहां पे 10 कम से कम प्लेसेस रेडी की जा रही है कि दुनिया आए देखने, और उसको कनेक्टिविटी दी जा रही है। तो करोड़ों, मिलियंस ऑफ रुपीज बीइंग पम्प्ड इनटू नॉर्थ ईस्ट, नो मोर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो वो इक्विटेबल डेवलपमेंट आप सोचो उस टाइम क्यों नहीं हो सकता था? वो आंसर आपको उस पर्सपेक्टिव से लिखना पड़ेगा कि पीएसयू तो बनी, पीएसयू कहाँ बनी? अब पीएसयू आपने बना दी, लेकिन पीएसयू भी इनएफिशिएंट है। अब जी कितना पैदा हो रहा है, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है? फर्टिलाइजर है या कोल भी है? लाइट कहाँ थी? कोल भी प्रोडक्शन हो रहा है तो हम इंपोर्ट नहीं करते थे इतना। हम्म अगर आप इंपोर्ट कर भी रहे हो मैडम, तो हम जो है, हमारे पास बिजली बनाने का साधन कहाँ है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन तो सबसे पहला बना था, लेकिन क्या हम इतने? तो बेसिकली सोशली डेवलपमेंट मॉडल ने हमारी इंटरप्राइजिंग, हमारी इनोवेशन, और हमारे जो रिफॉर्म्स हैं, जो टैक्सेशन और बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं, वो तो बिल्कुल लिमिटेड थे। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो टैक्स क्या देंगे? जी सोशलिस्ट मॉडल है ना। हाँ जी सर। आप मिट्टी का तेल बांट दो, और आप जो है मिट्टी का तेल बांट दो, और गेहूं और चावल बांट दो, बस हो गया। हम्म और जब सोशलिस्ट मॉडल है, तो प्राइवेट फर्म्स, गुड़गांव कैसे, गुड़गांव डेवलप ही हुआ है लिबरलाइजेशन के बाद। चेन्नई मेट्रोपॉलिटन बना लिबरलाइजेशन के बाद। अभी हमने बात की सर्विस सेक्टर की, तो वो सारी चीज एब्सेंट है उससे पहले। हम्म तो वो हमें लेके आना पड़ेगा। तो कम हमें, मतलब ये आंसर में, मतलब हमें जेनरिक नहीं लिखना, क्योंकि ये सब पता है सबको, तो एवरेज आंसर हो जाएगा। लेकिन ये जैसे क्वेश्चन बोल रहा है स्लो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी 3.5% फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये तो प्री लॉन्ग टाइम, लिबरलाइजेशन टाइम पीरियड तक की बात हुई ना सिर्फ। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ये तो प्री। रेट ऑफ ग्रोथ 1990s, तो हम उसके बाद की वो तो बात कर। आपने बता ही दिया, लेकिन वो कह रहा है भाई क्यों। तो क्यों में हमने जो पहला पार्ट आंसर का लिखा, हम्म हमने लिखा ग्रेजुअली शिफ्ट हो गया। आपने चलो पहला स्टेटमेंट, चलो मैंने माना, जी पहला स्टेटमेंट मिक्स्ड इकोनॉमी तक का वो बिल्कुल परफेक्ट चला, लेकिन उसके बाद आपने आंसर को रिपीट कर दिया कि भाई हिंदू ग्रोथ रेट, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। चलो आप थोड़ा फास्ट और क्विक हो सकते थे कि फॉलोइंग फैक्टर्स का कुछ, मतलब बचाना है हमें स्पेस, जो भी हम्म है, एक आइडिया है ये। फिर हम्म आपने चलो बता दिया। अब आपने, लेकिन जो जिस तरीके से न्यूली इंडिपेंडेंट, जो ये हो गया इमोशनल, हो गया ये पॉवर्टी, फूड सिक्योरिटी, ये तो भाई लिबरलाइजेशन के बाद भी हटाना है ना। और उसके बाद फिर आपने जो लिमिटेड डेटा की बात की, बात सही है, लिमिटेड डेटा नहीं था तो दूसरा वन नंबर पॉइंट है तो ट्रू, लेकिन ये तो हर कॉस्ट पे ट्रू है। वो ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो पाया। जो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट था, उससे भारत के सारे जो एरिया है, भारत है जो, वो डेवलप क्यों नहीं हो पाया, ये कहना चाह रहा है ये। तो अब इसमें बात तो सही है, तो आप इसमें बोल सकते हो कि भाई सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है वो हमारा हैवी इंडस्ट्रीज पे बेस्ड था, और साथ साथ में पीएसयू लगा लो। चलो हैवी इंडस्ट्री में कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है, पर पीएसयू भी हो गए, दो चीजें। तीसरा, इनफॉर्मल जो एमएसएमई है वो भी थोड़े बहुत है ही हैं, लेकिन क्या आप आज जैसे चाइना से आप माल मंगा रहे हो, सिर्फ गलत ही थोड़ी ना आ रहा है, ऐसे बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं ना जिससे लाइफ आसान हुई है, जिससे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हुई है। हैं? हाँ जी अभी आप कोई ऐसा ब्लेड यूज करते हो, या कोई आप ऐसे ई कॉमर्स साइट्स पर हम जाके देखते हैं तो अरे ये तो बड़ी काम की चीज है यार। कपड़े ही लगा लो आप, गरीब आदमी को हम्म 100 100 200 200 400 रुपए में ऐसे ऐसे कपड़े मिले हैं वो, जो इंडिया में सोच नहीं सकता।
क्योंकि इंडिया में जब वो बनते हैं आपके अरविंद और ग्रेसिम और ये सारे जो बनाते हैं, वो 1,000 रुपए से शोरूम में स्टार्ट करते हैं। जी। सेम थिंग गोज फॉर जूते। तो मतलब हमें सोच के लिखना पड़ेगा कि सोशलिस्ट मॉडल अच्छा तो है, लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्यों नहीं लेके आ पाया। क्योंकि पहली बात तो जॉब जॉब ग्रोथ ही नहीं कर पाया, इतनी जॉब ही ग्रोथ नहीं कर पाया कि सब एरिया के सब लोगों को जॉब मिले। इसीलिए एग्रीकल्चर में हम कूदेंगे। बात आप समझे? तो हिंदू ग्रोथ रेट अपने आप होगी, तो एग्रीकल्चर कितना दे देगा हमें। ग्रीन रेवोल्यूशन अगर हो भी गया है नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में, कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार, लेकिन वो पूरे इंडिया को सस्टेन तो नहीं कर रहा ना, खाने को तो दे दिया उसने। जी। बाकी क्या होगा? बंगाल अभी भी इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ। हम्म। उड़ीसा में 1990s से पहले क्या है? उड़ीसा, सोचो, उड़ीसा तो बहुत बैकवर्ड माना जाता था। उड़ीसा और हाँ। झारखंड, बिहार आज भी बैकवर्ड। तो ये तोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब अच्छा है आंसर, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब वो कंसंट्रेशन और जो एग्जैक्ट स्पेसिफिक्स है वो मिसिंग हो गए हमारे। जी। चलिए आगे। स्पेसिफाई द मेन फैक्टर्स विच hindered trickle down in Indian economy and agenda of inclusive growth is being pressed into for economic justice। तो ये भी बड़ा रिवर्स क्वेश्चन है, ये हम्म। स्मार्ट क्वेश्चन है। ये आपसे मतलब बेसिकली क्रिटिसाइज करने को बोल रहा है, लेकिन वो क्रिटिसिज्म भी ऐसा होना चाहिए जो अगर ठीक हो जाए तो काम बन जाए। वो फैक्टर्स की बात कर रहा है, जो फैक्टर लास्ट आदमी को स्कूल में जाने से रोक रहे हैं। स्कूल में जा रहा है तो पढ़ नहीं पा रहा है। बच्चा अगर रेलवे स्टेशन पे पैदा हो रहा है तो पीएचसी में क्यों नहीं पैदा हो रहा है। और अगर खाने को राशन मिल रहा है तो उसमें कीड़े नहीं होने चाहिए। मिड डे मील स्कीम अगर अच्छा मिल रहा है तो ठंडा खाना नहीं होना चाहिए। और अगर आपको कपड़े मिल रहे हैं तो आपको सुसाइड नहीं करना पड़े बेसिकली वो। और मार्जिनल सेक्शन का व्यक्ति ही क्यों हमेशा मरे। तो बेसिकली एजेंडा ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ तो बड़ा ब्रॉड शब्द है। आज हमारा एजेंडा है कि सारे भारत का गरीबी हट जाए। कल एजेंडा होगा सारे भारत के पास कार हो। फिर एजेंडा हो सकता है कि सारे भारत के लोग जो है मतलब हाईली लिटरेट R&D का बड़ा करें। तो इसका तो कोई अंत हम्म। नहीं है। लेकिन ये जो अभी के लिए पूछ रहा है, अगर आप सोचो जनधन है, जैम ट्रिनिटी के बावजूद, सारी चीजों के बावजूद क्या फैक्टर हैं, तो सारे फैक्टर आप एक एक करके ला सकते हो। हम्म। देखते हैं। फायर प्लान हैड द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूजिंग अ सस्टेनेबल ग्रोथ प्लान ऑफ इंडिया एज postulated by planning commission, and this is continuing in a more refined way till now, till the goal is achieved। ब्रैकेट में लिख दो सबका साथ सबका विकास। जी। अब इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है? सबका साथ सबका विकास है। और वो 50-100 तरीके से दिखती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? वो भी इंक्लूसिव ग्रोथ का है, ट्रिकल डाउन जाए। जी। तो फैक्टर्स कॉजिंग हिंड्रेंस, साइज ऑफ इकोनॉमी। मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद 1.4 बिलियन पीपल, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्रिएट्स टाइम लैग इन इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमंगस साइज होना चाहिए। मतलब साइज से आपको प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा साइज है। ऐसे आप बोलोगे तो फील आएगी कि आपने साइज को गाली भी नहीं दी और आपने साइज को बता भी दिया कि कितना मुश्किल काम हम कर रहे हैं। लेकिन आपने पहले जब सीधा लिख दिया साइज ऑफ इकोनॉमी, तो यानी आप कहना चाह रहे हो यार बड़ा साइज है इसीलिए गड़बड़ हुई। तो हम्म। वर्ड का बहुत, चॉइस ऑफ वर्ड्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो जी। आपने इंटेंशन तो पूरा नहीं था, लेकिन इंटेंशन क्या जा रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट हम्म। टुक 10 years टू अचीव 99% ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन। आप ये मत बोलो इंडिया वाज एबल टू अचीव, बट इन 10 years। हाँ। पसीना नहीं बहाना है कि अरे 10 साल में हुआ भाई, क्या बताएं यार, न्यूजीलैंड होता तो 4 न्यूजीलैंड बन जाते। ये नहीं करना है। चाय वाला टॉक नहीं चाहिए। आप एक पर्सपेक्टिव ऑफिसर की तरह बात वही कहिए, लेकिन सांस ऐसे रखिए कि हाँ 10 साल लगे लेकिन हमने पाया। हम्म। अगला आइए। मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेयर्स बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लोकल बॉडीज, अकॉर्डिंग टू आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, 1 रुपी स्पेंड बाय गवर्नमेंट ओनली। अब ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसको ऐसे पुटअप ना करके आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी जैसे आपने बोल दिया, तो बेटर कोऑर्डिनेशन डिजायर्ड ना। बेटर कोऑर्डिनेशन के बिना तो नहीं हो सकता। तो फिर एग्जांपल भी दे दो। आपको एक रियल एग्जांपल देना पड़ेगा। जैसे आपने ये तो बता दिया आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट अगर कहती है कि 1 रुपया स्पेंड होता है तो 80 पैसे, तो ये तो मतलब पॉजिटिव हो गया। वैसे पहले तो 25 पैसे पहुंचता था, अब तो 80 पैसे पहुंचने की बात हो रही है। तो बात तो आपने अच्छी लिखी, लेकिन अगर वो कह रहा है फैक्टर्स, तो हम्म। एक तो हमने बता दिया। दूसरा आप, या तो आप ऐसे कहते, मतलब इसका भी क्लासिफिकेशन और अच्छा हो सकता है थोड़ा स्मार्टली अगर किया जाए कि फैक्टर हिंड्रेंस में सबसे पहला तो हो गया कि डिमांड एंड लार्ज साइज हो गया। दूसरा हो गया आपका मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेयर्स, भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो हॉरिजॉन्ट, अब आप आंसर में अगर ये कहना चाहते हैं ये लिखकर कि ये सारी लेयर खत्म हो जानी चाहिए, एग्जामिनर अगर ये सोचेगा तो हमारे नंबर कटेंगे नहीं कटेंगे हम नहीं जानते। तो हमें कोई भी बात अगर बोलनी है
तो हमें ऐसे बोलनी है कि वो चीज है सर, लेकिन क्या इसमें और सुधार नहीं हो सकता, वैसा वाला एस्पेक्ट आना चाहिए। हम्म तो ठीक है, सेकंड पॉइंट भी मतलब, लेकिन इसको और अच्छा हम फास्ट अगर आंसर लिखे तो हम सोच सकते हैं। वो माइंड मेंटल स्टेट की बात है। ऑफलाइन ऑफलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन क्रिएटेड गैप बिटवीन सिटीजन एंड रेगुलेटर। डीबीटी हैज सेव्ड, देखो आ गया पॉजिटिव, डीबीटी हैज सेव्ड 3 लाख करोड़ फ्रॉम लीकेज, thus a shift towards inclusion growth is necessary। देखो ये आंसर का जो टोन बाद में आया डिफरेंट है। टाइमली सर्विस डिलीवरी बेनिफिट्स, वाइडर रीच, अफोर्डेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ई नैम एंड पीडीएस स्कीम। तो अब यहाँ पे आपको बात करनी थी मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की, क्योंकि वो करके सरकार चाह रही है कि इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आए। ब्यूरोक्रेटाइजेशन और रेड टेप के अंदर चीजें नहीं फंसाना चाहती। जी यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना था। तो हर घर नल, द स्कीम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या हुआ अभी, उसमें पेनेट्रेशन नहीं पहुंचा ना वहां तक, बिकॉज उसका एक तो कॉस्ट एक्सकेलेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स बीच में खा गए। तो वो एक एग्जाम्पल है जो अभी आपने बीच में लिखा कि जो वर्टिकल हॉरिजेंटल वट एवर यू वांटेड टू कन्वे। तो यानी कि एक एस्पेक्ट जरूर है कि जो गैप है, जो आपने 80 पैसे वाली बात दी कि वो सब सही है, लेकिन वो देना पड़ेगा कि कैसे, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी एक थोड़ा सटल और छोटा वर्ड है, लेकिन आप कहोगे करप्शन, करप्शन है, तो करप्शन भी एक पॉइंट है हिंड्रेंस में। तो हम वो वाला एग्जांपल दे सकते थे कि भाई कैसे, जब हर घर नल पहुंचना है, आपने कॉस्ट भी बढ़ा दी, नल भी नहीं पहुंचा, और पैसा भी डूब गया। तो मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ तो ये की एग्जांपल ये हुआ। एक एग्जांपल, हम दूसरा एग्जांपल भी आप देखते, जैसे पीएम फसल बीमा योजना है। अब कई सौ करोड़, हजार करोड़ रुपए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन किसानों के नकली वो बन गए। 10,000 50,000 एफपीओ को भी प्रॉब्लम हुई, नकली बन गए, सरकार को उसको रोकना पड़ा। कहां से होगा इंक्लूसिव ग्रोथ? दो एग्जाम्पल आप ऐसे अलग अलग दे दो, तो जरूरी नहीं कि आपको सारी चीज बतानी पड़ेगी। आपने दो बड़ी बड़ी बातें की, फैक्टर आप फिर ऐसे ऐसे करके एरो किया, दो केस स्टडी बता दो, बाकी फैक्टर बता दो, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। या फिर हर पॉइंट में जो आप बता रहे हो बहुत क्लियरली निकल के आए कि एक एक फैक्टर क्या है, कि स्कूल तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ गया, लेकिन हम्म स्किल नहीं आया, एक आ गया। जी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तो बन गया, लेकिन डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स ही नहीं है ना। तो ब्रैकेट में क्या लिखा, ब्रैकेट में आपने लिख दिया हेल्थ बजट या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम नहीं होगा इंक्लूसिव। तीसरा, सड़क तो बनी, लेकिन वो मतलब जो है इनएडिक्वेट विजिलेंस के अंडर बनी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है। अभी अजमेर के अंदर नया ब्रिज जिसको इनॉग्रेट हुए मान लीजिए 1 हफ्ता 10 दिन हुए हैं, पहली बारिश में एक हिस्सा उसका टूट रहा है। जी तो जो जुडिशरी है उसको वो बोलना पड़ा इसको बंद करो, पूरे उसको उसको ने बंद कर दिया, डीएम को ऑर्डर दिए, और हम्म उसका स्ट्रक्चरल असेसमेंट करने की बात कर दी, कई सौ करोड़ का था वो। तो जब जी तक ये माइंडसेट है, जब तक ये वर्क कल्चर है, आप वर्क कल्चर लेके आते, कि वर्क कल्चर जब तक चेंज नहीं होगा, एक फैक्टर वो भी है ब्यूरोक्रेसी का वर्क कल्चर। वर्क कल्चर जब तक चेंज चलता है, एटीट्यूड लिख देते हैं आप कि चलता है एटीट्यूड, जब तक नहीं छोड़ेंगे। कैसे हम्म छोड़ेंगे, उसके लिए कर्मयोगी मिशन, उसके बाद जो है यू नो लेड बाय लेड बाय पर्सनल एग्जांपल। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो जी ये सर बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है इंक्लूसिव ग्रोथ का, इसमें कुछ भी आ सकता है, लेकिन बड़ी क्लियरली, यानी जो क्वेश्चन जनरल है उसमें बहुत सटीक और बहुत ही ऑब्जेक्टिव एग्जांपल देने पड़ेंगे, तभी हम्म हम पांच पांच 10 में से 5 से ऊपर नंबर खींच पाएंगे। क्योंकि लिख तो कोई भी सकता है, जैसे मैंने कहा शुरू में, इसको जीएस में भी आ सकता है, ये एथिक्स में भी आ सकता है, पर हमारे पास इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2 में आया। हम्म ये क्वेश्चन तो मतलब जो है पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाए तो कोई हैरानी की बात हाँ नहीं है सर, नहीं है, जैसे लेकिन हम करप्शन फिर है, करप्शन एक वन ऑफ द फैक्टर्स है, बट उसको हम कैसे लिखेंगे क्योंकि उसका इसको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जाना चाहिए। नहीं, तो करप्शन को आप एक्नॉलेज कर रहे हो, ये नहीं आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे अब हमारा क्वेश्चन जब कह रहा है कि भाई व्हाट आर द हिंड्रेंसेस ना, हिंड्रेंसेस। जी सो करप्शन करप्शन ब्रैकेट में लिख दो, मोरल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एट डिफरेंट लेवल्स, जी तो अब आपने ऐसा भी लिख दिया, लेकिन आपने उसको मतलब उसको आपने सिनिकल सेंस में ही पोर्ट्रे नहीं किया। एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन तो कई तरीके का है ना। हम्म तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस चाहिए, है जी ना। हाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस नहीं चाहिए,
है ना, लेड बाई और यू कैन से सस्टेन्ड बाई एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस, खत्म। हाँ करप्शन इज सस्टेन्ड बाई लैक ऑफ एक्टिव गवर्नेंस मॉडल, एक्टिव ऐसा करके कुछ भी लिख दिया। जी तो हर बोलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं जब किसी स्टेट्स में जाते हैं कि कांग्रेस की सरकार ऐसी थी और है ना ऐसा था, ये नहीं था। जी आपको बस बजाय पॉलिटिकल एंगल सोच के आपको लिखना, चेंजेस तो आए हैं नो डाउट। जी भाई कहाँ हम 2004 में या 2010 तक, हम 2015 तक भी हम 14वें नंबर पे थे या 10वें नंबर पे थे, जी चौथे पे आए हैं, तीसरे पे आए हैं। और अभी जो 3 दिन पहले हमने चर्चा की थी कि हम्म, इंडिया, एक ग्लोबल रिपोर्ट आई है कि हाउ इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट इक्विटेबल कंट्री, जी फोर्थ मोस्ट कंट्री। अगर हम्म, हमने, तो आप उससे इंकरेजिंग पॉइंट लेके आ जाओ कि हिंड्रेंस कम हो रही है। बात समझ रहे हैं मेरी क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ जी तो यानी एक पॉइंट में आपने फैक्टर में हिंड्रेंस बताई है, एक फैक्टर आपने ठीक बताया लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ है। भाई वुमेन एंड गर्ल, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन जब तक आएगा नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हो सकती। जी तो एक एक एंगल है ना वो, एक तो आपने लिख दिया कि जब तक FLPR इज नॉट रेज्ड, हम्म नॉट रेज्ड बाय रिमूविंग द स्टीरियोटाइप्स एंड एग्जिस्टिंग फैक्टर्स, क्योंकि अब वहाँ फैक्टर हम डिटेल में नहीं लिख सकते, हमें नहीं लिखने हैं क्योंकि जी हमें सिर्फ लिखना इंक्लूसिव ग्रोथ है। तो हमने लिख दिया स्टीरियोटाइप एंड एग्जिस्टिंग फैक्टर्स विदाउट ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग। तो वो लाइन जो है विदाउट ग्लास सीलिंग वाली, हम्म, उससे एग्जामिनर को अपने आप समझ में आ जाता है कि अच्छा इसको 4 पॉइंट इसके और भी बता दे, लेकिन यहाँ जरूरत हाँ नहीं थी नहीं है। तो आपने वो एक बात बोल दी। तो अलग अलग एरिया के जब आपने एक एक बोले, चाहे वो एग्रीकल्चर का एक बोला, जैसे अभी, अब से पहले एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स एग्रीकल्चर करके वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन आज जा रहे हैं। हाँ आज एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, सेंसर, UPI, उसके बाद जो है ई कॉमर्स, उसकी वजह से उनको इंटरेस्ट आ रहा है। जी लोग इंजीनियरिंग फार्मिंग से पैसा कर रहे हैं और उनको इंटरेस्ट भी आ रहा है और वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट हुआ ना। हाँ जी तो ये फैक्टर है, ये फैक्टर है। हिंड्रेंस क्या है? जब तक वो कनेक्टिविटी नहीं होगी। अब हिंड्रेंस है ना इंक्लूसिव ग्रोथ में कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन लीडिंग टू क्योस, एक तरीके से। भाई हम्म एक दिन नहीं होता ना, सिक्किम में एक बार बाढ़ आती है, एक बार जब वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, क्या था वो FL, जो भी क्लाउड बर्स्ट नहीं था वो, मतलब लेक दैट हाँ यू नो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ, उसके बाद 5 साल पीछे हो गया वो। जी हाँ अभी हिमाचल में इतना भयंकर जो हुआ, हाँ, वो एरिया 4-5 साल पीछे हो गया। उत्तराखंड में बार बार जो पांच, तो ये फैक्टर दिख नहीं रहे, लेकिन ये फैक्टर तो कॉस्ट ले रहे हैं ना। तो आप हाँ, ऐसी बात लिखिए जिससे एग्जिस्टिंग कॉमन फैक्टर ऑलरेडी उसमें घुस जाए। एक फीमेल का आ गया, एक अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट का आ गया, एक आपने डिजिटाइजेशन का बोल दिया, एक आपने एग्रीकल्चर का बोल दिया, एक आपने मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल का बोल दिया। जब तक उसका लेबर कॉस्ट कम नहीं होगा, जब तक उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम नहीं होगा, तो वो ग्रोथ होगी नहीं। जी लास्ट माइल पर्सन को कैसे चैन आएगा, घर कैसे मिलेगा उसको? हाँ जी ऊपर से जब तक, या तो ऊपर का खाना बंद कर दो, हम्म और या हमारे पास इतना हो पर कैपिटा इनकम हमारी इतनी बढ़ जाएगी सब तक पहुंच जाए। जी तो ये क्वेश्चन ही हमारे असली हमें टेस्ट करने वाले हैं। आपने जैसे बाद में बताया कि 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, हर घर नल से जल है, बिल्कुल सही बात, फॉर्मुलेशन। तो ये, लेकिन अब पॉइंट ये, जब हम क्वेश्चन पे जाते हैं, जैसे जी आइए क्वेश्चन पे आइए, जैसे क्वेश्चन पे आइए, तो क्वेश्चन अगर ये बोल रहा है कि वो specify the main factors which hinder trickle down in Indian economy and agenda of inclusive growth is being pressed into for economic justice। जी तो मतलब कि सारे पॉइंट सही हैं आपके, कोई डाउट नहीं है। हम्म लेकिन क्या वही बात है कि पानी में थोड़ी मिट्टी मिली हुई है, तो पानी जब शांत होगा, ऊपर का पानी हम साफ कर सकते हैं। हाँ जी तो लेकिन अब यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में देना था सारा, जैसे आपने टाइमली सर्विस डिलीवरी और वाइड रीच, जो अफोर्डेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ई नाम पोर्टल दिया, और आपने बाद में ये जो इतना सारा मसाला बताया। तो वो कह रहा है कि मेन फैक्टर्स बता दीजिए जो हिंड्रेंस हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, और इंक्लूसिव ग्रोथ का जो एजेंडा इकोनॉमिक जस्टिस का है। हम्म तो वो एक ही फ्लो में चलना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6।
तो पॉइंट सारे ऐसे ही होंगे, लेकिन ऐसे ऐसे ब्रेक्स में नहीं हो सकते। और उसमें फिर आप एक पकड़ लो, जैसे अब आपने बोला, मान लीजिए आपने बोला रूरल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बोला आपने, सपोज करो। तो लेकिन शुरू में हम इसको नहीं देख सकते। शुरू में आप सोचिए कि इंक्लूसिव ग्रोथ सबसे पहले क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए कि भाई आदमी के पास जो है वो खाने को हो। सबसे पहले खाने को चाहिए ना। जी। सोएगा तो बाद में ना, पहले खाएगा, हम्म। है ना। तो आप पहले पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि टारगेटेड टारगेटेड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हाँ, टारगेटेड, लेकिन, है ना, रीचिंग टू द इंटेंडेड बेनिफिशियरी। उसके बाद ब्रैकेट में डीबीटी आपने चलो एक बात बता दिया, हो गया। बेसिक अगर बात करें, इकोनॉमिक जस्टिस वर्ड यूज कर रहा है। हम्म। सबको आपको स्कूल पहुंचाना है जिसका अधिकार है। सबको आपको प्राइमरी हेल्थ दिलवानी है, सेकेंडरी हेल्थ मिलनी चाहिए। फिर सबको आपको जो है फीमेल, फिर आप थोड़ा सा जब 2-3 पॉइंट बेसिक वाले लिख देंगे, चौथे में आप थोड़ा सा खुल के लिख सकते हैं कुछ भी, कि भाई पहला फर्स्ट, फर्स्ट, जैसे फर्स्ट वो फीमेल, जब आप फीमेल की बात करते हैं, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट की बात करते हैं, जी। तो इकोनॉमिक जस्टिस से आपका मतलब क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस से आपका मतलब है यार कि पहला फीमेल लोको ड्राइवर, पहली फीमेल कैब ड्राइवर, पहली फीमेल फाइटर पायलट, ये सारा इकोनॉमिक जस्टिस तो है। वो भी तो घर की जैसे कहते हैं, मेल ही क्यों कमाएगा? तो जी। बहुत ओपन एंडेड है ये। क्या? जी हाँ सर। बहुत ओपन एंडेड है। तो मैं एम जस्ट गिविंग यू सर्टेन आइडियाज कि आप इसको इनोवेटिव 1 2 3 4, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ेंगे, जैसे आपने बोला, अब आप यहाँ कह रहे हैं इट कैन बी असेस्ड फ्रॉम द विजन, तो वो नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा था कि भैया हिंड्रेंसेस फैक्टर बता दो इंक्लूसिव ग्रोथ के, और वो इंक्लूसिव ग्रोथ का जो एजेंडा है आपका इकोनॉमिक जस्टिस तक कैसे लेके जाएगा। तो फ्लो वही रखना है, फ्लो जी। वही रखना है। उसको आप बीच में आंसर को अगर टोन चेंज करेंगे तो उससे हिल जाएगा। जैसे वही बात है कि अगर आपने क्ले से कुछ बनाया, यू हैव मेड समथिंग फ्रॉम क्ले, और फिर आप बना के उसको सूखने से पहले आप उसको फिर से मोल्ड कर रहे हो, तो टूट जाएगा। हम्म। तो ये आंसर की अंडरस्टैंडिंग सही है, लेकिन हमें उस तरीके से इसको देखना पड़ेगा। सो आई जी। थिंक more more effort in the same direction, and rest you can share your points. सर फर्स्टली तो जो कॉमन एग्जांपल जो फर्स्टली इमीडिएटली माइंड में आते हैं उनको अवॉइड करना है। एंड In थोड़ा many cases, not in all the cases, we हाँ should जी। not मतलब हाँ force, सर। but then we should try to get some second good example. हम्म। क्रिकेट में तेंदुलकर लिखना ही जरूरी नहीं है, द्रविड़ भी लिखा जा सकता है। जी। हाँ। और सर जो जनरिक क्वेश्चंस होते हैं जो ओपन एंडेड बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें उसमें स्पेसिफिक चीजें ही निकल के आनी चाहिए विद क्लैरिटी। तो जो भी पॉइंट हम्म। फॉर्मेशन है उसका टोन जो है, चॉइस ऑफ वर्ड्स है, उस हाँ, पे फोकस होना चाहिए अच्छे से। क्योंकि हर कोई इसको लिख सकता है। जी हाँ जी हाँ। हर एक का अलग अलग पॉइंट है। जी सर। जो जैसी जिसकी कंडीशनिंग है, जैसी जिसका माइंडसेट है, वो वैसा बताएगा। हम्म। इकोनॉमिक जस्टिस है, दलित का अलग माइंडसेट है, फीमेल का अलग है, रूरल बॉय का अलग है। हम्म। तो वी मस्ट नॉट गेट बायस्ड बाय आवर ओन कंडीशनिंग। जी। एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू गिव यू द एडवांटेज कि वो पढ़ते उसको पता लग जाए कि ये तो विलेजर है, ये तो अर्बन है, ये तो रूरल हम्म। है, ये तो लड़का है, जी। तो नंबर नहीं आता। हम्म। तो उससे ब्रॉड, उससे ऊपर उठ जाओ कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या है। इकोनॉमिक जस्टिस सबके लिए, मिडिल क्लास के लिए भी इकोनॉमिक जस्टिस है। हम्म। जो टैक्स दे रही है, जी। तो क्या उसको सर्विसेज मिल रही हैं, तो वो भी इंक्लूसिव ग्रोथ है ना। हम्म। तो थोड़ा स्मार्ट तो लिखना हाँ। पड़ेगा। हम्म। एनी अदर पॉइंट यू वांट टू से? नो सर। So thank you very much for such an intense and interactive discussion where we were able to bring so many points on the foray, which is such a critical aspect to learn and to understand. And that is why it can't be done in one go. It is not a sprint, it is a marathon, but a happy marathon where we love to explore, we love to try to keep it in our mind, and in the background a lot of more and more discussion exercise goes on, so that every moment we are becoming better version of ourselves and try to move towards the answer, because there is nothing called perfect answer. It is always an appropriate thing. If it is done on time, success will be ours. With this vision and idea, thank you very much for being and trying always, learning always, and going forward with Ansarkar.